শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের প্রথম পরিচ্ছেদে গুরবাদী বন্দন মঙ্গলাচরণে আছি। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের এই সংস্করণটি তাদের উদ্দেশ্যেই সমর্পণ করা হয়েছে যারা হচ্ছেন পরম তত্ত্বের অন্বেষণকারী আদর্শ জ্ঞানী ও গুণী পণ্ডিত। এটি মনোধর্মীদের অহমিকা প্রসূত পাণ্ডিত্য নয়, পক্ষান্তরে এটি হচ্ছে পূর্বতন আচার্যদের আদেশ শিরোধার্য করে তাদের সেবা করার এক বিনীত প্রচেষ্টা। কারণ তাদের সেবা করাই হচ্ছে আমাদের জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থটি ভগবত কৃপায় প্রকাশিত শাস্ত্রসমূহ থেকে একটুকুও পৃথক নয়। তাই গুরু পরম্পরার ধারা অনুসারীকারী যে কোনো ভক্ত, ভগবত ভক্ত কেবলমাত্র শ্রবণের মাধ্যমে এই গ্রন্থের সার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন। হরি বল। হিন্দি प्रभु जी, हिंदी आप बोले थे एक साथ साथ में पढ़ेंगे, कल तो ऐसे ही बोले थे। আচ্ছা, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের প্রথম পরিচ্ছেদটি শুরু হয়েছে 14টি সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে, যেগুলির মাধ্যমে परम तत्व वर्णना करा हुआ है। 14 श्लोक में परम तत्व का वर्णन किया गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्रथम 14 श्लोक में परम तत्व का वर्णन किया दिया, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि विष्णु तत्व तो, हाँ बोलिए पंकज प्रभु। हाँ, तीनों विष्णु तत्व का वर्णन है। हाँ, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य। পরবর্তী 3টি সংস্কৃত শ্লোকে বৃন্দাবনের 3 মুখ্য বিগ্রহ শ্রী राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव और श्री राधा गोपीनाथ जी वर्णना करा हुआ है। ये थोड़ा हमको लग रहा है क्योंकि 14 नंबर में पंचतत्व को भी ले लिया। हाँ, 11 तक नित्यानंद प्रभु था, 12-13 में अद्वैताचार्य था, 14 नंबर में पंचतत्व था। तो पंचतत्व को भी विष्णु तत्व में लिया जाता है टुगेदर कलेक्टिवली, और 15, 16, 17 वो संबंध विधेय प्रयोजन। प्रथम 14टी श्लोकेर प्रथमटी হচ্ছে परम तत्त्वेर प्रतीक प्रकाश এবং প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ প্রথম পরিচ্ছেদটি এই একটি শ্লোকে উৎসর্গীকৃত হয়েছে, যাতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু 6টি অপ্রাকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। তাহার প্রথম प्रकाश के श्री गुरुदेव रूपे वर्णना करा हुआ है, माने भगवान का, महाप्रभु का इमीडिएट फर्स्ट प्रकाश, ठीक है नरेंद्र सर्वर प्रभु, वो है बलराम जी। वो कौन है? गुरु रूप में, जिन्हें दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु रूपे आविर्भूत हन। तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु उनारी प्रकाश तार उभयई अभिन्न, केनना तारा उभय हच्छेन परम तत्त्वेर प्रकाश, ठीक है, दोनों ही अभिन्न है बलराम जी से। তারপর ভগবত ভক্তদের বর্ণনা করা হয়েছে। ভক্ত দুই প্রকারের, সাধক ভক্ত ও ভগবত पार्षद। माने साधक भक्त कौन होगा? जो उस दिन हम लोग आलोचना कर रहे थे, साधन बद्ध और मुक्त जीव, नित्य बद्ध नित्य मुक्त। भगवत पार्षद कौन होगा? नित्य मुक्त जीव, एकदम इटर्नली लिबरेटेड सोल। तारपर भगवानेर अवतार, যাদের ভগবানের থেকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়। এই অবতারদের আবার 3টি শ্রেণী বিভক্ত করা হয়েছে: অংশ অবতার, গুণ অবতার ও শক্তাবেশ অবতার। এই সূত্রে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ প্রকাশ এবং তার অপ্রাকৃত লীলা বিলাসের উদ্দেশ্যে ভিন্ন রূপে বিলাস বিগ্রহ প্রকাশের বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর ভগবানের শক্তির আলোচনা করা হয়েছে। ভগবানের এই শক্তি 3 প্রকার: বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, দ্বারকার মহিষী ও তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্রজধামের গোপিকারা। চরমে হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং, যিনি এই সমস্ত প্রকাশের মূল উৎস।
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তার অংশ প্রকাশ সমূহ সবই ভগবানের সমপর্যায় ভুক্ত এবং শক্তিমান পরম তত্ত্ব, কিন্তু তার ভক্তরা, তার নিত্য পার্ষদেরা হচ্ছেন তার শক্তি। শক্তি এবং শক্তিমান মূলত এক হলেও যেহেতু তাদের কার্যকলাপ ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়, তাই তারা যুগপট ভিন্ন। এভাবেই পরম তত্ত্ব একই তত্ত্বে বৈচিত্র্য রূপে প্রকাশিত হন। বেদান্ত সূত্র অনুসারে এই দার্শনিক তত্ত্বকে বলা হয় অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব, যা যুগপট ভিন্ন ও অভিন্ন তত্ত্ব। এই পরিচ্ছেদের শেষ দিকে উপরোক্ত সবিশেষ তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রাকৃত স্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। हरे कृष्ण। यहाँ समाप्त। यस, हिंदी में पढ़िए प्लीज, अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण। रेणु प्रभु जी, श्री चैतन्य चरितामृत का यह संस्करण उन निष्ठावान विद्वानों के अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जो सचमुच ही परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। ये किसी मानसिक तर्कवादी का दमपूर्ण पांडित्य नहीं है। यस माता जी। डिफरेंट है ये, जो गुरु वर्ग हिंदी में शेयर हो रहे हैं, से डिफरेंट पढ़ रहे हैं प्रभु जी। नहीं सेम है, तो बुक में जो है सेम है। सेम ही है। सेम है, हैं? सेम है। ओके, और देखते हैं थोड़ा आगे। यस, कंटिन्यू प्रभु जी। माता जी स्क्रीन शेयर आप कर रहे हैं तो ये गलत स्क्रीन शेयर हो रहा है, फिर दूसरा आगे जाएगा फिर शायद। ये पहले का आप शेयर कर रहे हैं, इसके बाद वाला है। नहीं तो हिंदी तो स्टार्टिंग से होगा ना प्रभु जी, हिंदी तो वही नहीं, था कल। प्रभु जी ने जहाँ से स्टार्ट किया वहां से कर रहे हैं। नहीं प्रभु, एकदम स्टार्टिंग से करिए प्रभु। कल हम लोग जहाँ स्टार्टिंग किया था प्रभु आधा पढ़ लिए थे ना, इसीलिए यहाँ से कर रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग से करिए। ओके। अध्याय 1, गुरुवर्ग। श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि श्री राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप हैं। वे उन भक्तों के जीवन आधार हैं जो श्रील रूप गोस्वामी के चरण कमलों का दृढ़ता से अनुसरण करते हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रारंभिक जीवन में विश्वंभर नाम से प्रख्यात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक थे। श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी के दो प्रधान अनुयायी हैं। श्रील रूप गोस्वामी के प्रत्येक शिष्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी थे। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के प्रत्येक शिष्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर थे, जिन्होंने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती को अपना सेवक बनाया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी को शिष्य रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को दीक्षित किया, और इन्होंने श्रील गौर किशोर दास बाबा जी को दीक्षा दी, जो मुझ अकिंचन के दिव्य गुरु ओम विश्वपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु हैं। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हूँ। अतएव श्री चैतन्य चरितामृत के इस संस्करण में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे लघु मस्तिष्क की उपज हो, अपितु। एक सेकंड प्रभु। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु मतलब कि ये जो आपने गुरु परंपरा वाला जो दिया है, ये आप लोग कल बोल रहे थे जो वो, इसमें क्या ये शिक्षा गुरु बोलेंगे क्या इनको? पूरा परंपरा मिक्स है, कुछ शिक्षा गुरु परंपरा है, कुछ दीक्षा गुरु परंपरा भी है। ठीक है प्रभु, तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु इसमें मिक्स किया हुआ है ना प्रभु, लेकिन जो परंपरा आ रहा है वो परंपरा ही में है ना, शिक्षा और दीक्षा तो। हाँ, क्योंकि देखिए कुछ केस में अलग है, क्योंकि एक समय था जब शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक ही होता था, वो भी है। हाँ, और फिर मल्टीपल शिक्षा गुरु भी है, और किसी का दीक्षा गुरु के बारे में ज्यादा कुछ उल्लेख नहीं दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्रंथ का जो लेखक कविराज गोस्वामी प्रभु, उनका नित्यानंद प्रभु ने इनिशिएटेड हुए थे, कहीं पे आया था ये लिखा है, क्योंकि मैंने जब आएंगे तब देखेंगे, अभी तो हाँ, अभी कमेंट नहीं करने से अच्छा है। हाँ, कंटिन्यू प्रभु जी।
मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हूँ, अतएव श्री चैतन्य चरितामृत के इस संस्करण में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे लघु मस्तिष्क की उपज हो, अपितु यह साक्षात भगवान द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का अवशेष मात्र होगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध तीनों गुणों से बने भौतिक संसार से नहीं है। वे जीव की अपूर्ण इंद्रियों की पहुंच से परे दिव्य धरातल से संबंधित है। यह दिव्य धरातल बड़े से बड़े संसारी पंडित की भी पहुंच से तब तक परे रहता है जब तक वह विनीत भाव से दिव्य ध्वनि के श्रवण के लिए समर्पित नहीं होता, क्योंकि केवल उसी भाव में रहकर मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश की अनुभूति हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो भी वर्णन किया जाएगा उसका संबंध जड़ मनों की तर्कवादी आदतों से उत्पन्न प्रयोगात्मक विचारों से नहीं होगा। इस पुस्तक की विषय वस्तु मनगढ़ंत नहीं, अपितु ऐसा वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है जिसकी अनुभूति उपर्युक्त गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने पर ही की जा सकती है। इस परंपरा की शिक्षाओं से किसी भी प्रकार के भटकाव से पाठक चैतन्य चरितामृत के रहस्य को समझने की जगह उलझ कर रह जाएगा। यह दिव्य साहित्य उसी के स्नातोत्तर अध्ययन के लिए है जिसने उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र जैसे वैदिक साहित्य एवं श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता जैसे उनके स्वाभाविक भाष्यों की अनुभूति प्राप्त कर ली है। श्री चैतन्य चरितामृत का यह संस्करण उन निष्ठावान विद्वानों बोलिए माता जी। प्रभु जी वो उलझ के रह जाएगा, वो वाला लाइन थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। क्या बोल रहे हैं? उलझ के रह जाएगा, फिर से एक बार पढ़िए वो हिंदी वाला लाइन तो उलझ के रह जाएगा। क्योंकि केवल इसी भाव में आदतों प्रयोगात्मक। सुमन माता जी म्यूट कर दीजिए। हाँ, इस पुस्तक की विषय वस्तु मनगढ़ंत नहीं, अपितु ऐसी वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है जिसकी अनुभूति उपर्युक्त गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने पर ही की जा सकती है। इस परंपरा की शिक्षाओं से किसी भी प्रकार के भटकाव से, परंपरागत अगर नहीं समझेंगे इस चीज को तो हम लोग भटक जाएंगे, चैतन्य चरितामृत के विषय को हम समझ नहीं पाएंगे, उलझ के रह जाएंगे कि भगवान कौन है, भगवान है कि नहीं है, क्या है, विषय को नहीं समझ पाएंगे। तो भटकाव के पाठक चैतन्य चरितामृत के रहस्य को समझने की जगह उलझ कर रह जाएगा। अभी जैसे हम लोग ऐसे जैसे अभी परंपरा का हम लोग पढ़ रहे थे तो उलझ गए थे ऐसे ही आगे बहुत सारे ऐसे जगह आएंगे, जगह उलझ कर रह जाएंगे। आगे प्रभु। बेसिकली प्रभु जी ये हुआ कि मतलब कि गुरु शिष्य परंपरा से या गुरु के माध्यम से हमको इसको समझने का प्रयास करने से, अकेले एकांत में बैठ के पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। भक्तों के सानिध्य में यह दिव्य साहित्य उसी के स्नातोत्तर अध्ययन के लिए है जिसने उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र जैसे वैदिक साहित्य एवं श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता जैसे उनके स्वाभाविक भाष्यों की अनुभूति प्राप्त कर ली है। श्री चैतन्य चरितामृत का यह संस्करण उन निष्ठावान विद्वानों के अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जो सचमुच ही परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। यह किसी मानसिक तर्कवादी का दम्भपूर्ण पांडित्य नहीं है, अपितु ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने का निष्ठावान प्रयास है जिसकी सेवा ही इस विनम्र प्रयास का जीवनाधार है। यस माता जी। प्रभु जी ये लाइन गई है ना, अपितु ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन, यहाँ श्रेष्ठ अधिकारी कौन है? गुरुवर्य। अच्छा, कविराज गोस्वामी, इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। यहाँ तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो गुरु परंपरा में जो श्रेष्ठ हैं उनसे उन अधिकार है, उनको प्राप्त है कि वो भगवान के विषय में डिटेल में बता सकें। वो लाइन फिर से बोलिए प्रभु। श्री चैतन्य चरितामृत का यह संस्करण उन निष्ठावान विद्वानों के अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जो सचमुच ही परम सत्य
की खोज में लगे हुए हैं। ये किसी मानसिक तर्कवादी का दम्भपूर्ण पांडित्य नहीं है, अपितु ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने का निष्ठावान प्रयास है। পক্ষান্তরে এটি হচ্ছে পূর্বাতন আচার্যদের আদেশ। হ্যাঁ, ঠিকই বলে আপনি, মিন্স পূর্বাতন আচার্য। पूर्व के पूर्ववर्ती जो आचार्यों का आचार्य, आदेश है, उसको ही पालन कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद महाराज के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं इस वजह से। यस, जिसकी सेवा ही इस विनम्र प्रयास का जीवनाधार है, यह प्रामाणिक शास्त्रों की शिक्षाओं से बिल्कुल भी नहीं भटकता। अतएव जो कोई भी परंपरा का पालन करता है वह केवल श्रवण विधि से ही इस पुस्तक के सार का साक्षात्कार कर सकेगा। श्री चैतन्य चरितामृत का प्रथम अध्याय संस्कृत के उन 14 श्लोकों से प्रारंभ होता है जिनमें परम सत्य का वर्णन किया गया है। इसके आगे के 3 संस्कृत श्लोकों में वृंदावन के 3 प्रधान अर्चा विग्रहों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी का वर्णन हुआ है। 14 श्लोकों में से पहला श्लोक परम सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है और समूचा प्रथम अध्याय वास्तव में इसी श्लोक के लिए समर्पित है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके 6 विभिन्न दिव्य विस्तारों में वर्णन करता है। जिस प्रथम प्राकट्य का वर्णन हुआ है वह गुरु का है, जो दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु इन 2 अंशों में प्रकट होते हैं। ये दोनों एक रूप हैं क्योंकि दोनों ही परम सत्य के प्रकाश रूप हैं। इसके बाद भक्तों का वर्णन हुआ है, जिसकी 2 श्रेणियां हैं, नव शिक्षित तथा स्नातक। इसके बाद भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ है, जिन्हें भगवान से अभिन्न बतलाया गया है। एक सेकंड प्रभु, भक्त 2 प्रकार का होता है, एक साधक भक्त और भगवत पार्षद। हिंदी में क्या लिखा है? यहाँ पे नव शिक्षित तथा स्नातक। इसका क्या नव शिक्षित मान के नया, न्योफाइट? न्योफाइट और साधक मान? साधक के लिए बोलो। वही हुआ, वही साधक हुआ। लेकिन ये तो उल्टा है, यहाँ लिखा है भक्त 2 प्रकार, साधक भक्त और भगवत पार्षद। हाँ। इंग्लिश में क्या लिखा है? किसी के पास इंग्लिश है? इंग्लिश हाँ में प्रभु, तो लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा है अप्रेंटिसेस एंड ग्रेजुएट्स। ग्रेजुएट्स। ये हिंदी ये तो स्नातक। प्लीज कंटिन्यू प्रभु। तो थोड़ा आपने बता दीजिए बंगाली में इसका क्या कहा आपने? बंगाली में थोड़ा अलग लग रहा है, साधक भक्त और भगवत पार्षद। साधक, अच्छा भगवत पार्षद बोल दिया। माने नित्य सिद्ध नित्य मुक्त। हाँ हाँ, बोलिए माता प्रभु, जी। ये थोड़ा क्या है बता दीजिए ना, इसका क्या मतलब हुआ प्रभु उनको? तो भक्त 2 प्रकार, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिवोटीज। एक है जो आपने बताया, बोलिए इंग्लिश में। अप्रेंटिसेस, हाँ, तो उसको apprentices। हिंदी में हिंदी में क्या लिखा है उसके लिए? नव शिक्षित, नया नया जो सीख रहे हैं। एक एडवांस हो गया, मतलब जो ग्रेजुएट है। हाँ, अच्छा, तो और एक नित्यबद्ध है नया ये, नया तो सीख वाले रहा है अभी नित्यबद्ध है। वो। हाँ हाँ, तो ये नित्यबद्ध है ये वाले। मतलब जी यहाँ पे नित्य भक्त और नित्य मुक्त की बात नहीं हो रही है। हाँ, ओके ओके। वो दोनों को अलग ये हमारे में थोड़ा अलग दिया हुआ है बंगाली में। हाँ। साधक भक्त और भगवत पार्षद, साधक, हाँ वो थोड़ा अलग है। या प्रभु जी, भगवत पार्षद बंगाली में लिखा है, उसका कारण ये हो सकता है कि जो स्नातक स्तर पे पहुंच जाता है तो भगवत पार्षद ही स्नातक स्तर पे होता है। एडवांस डिवोटी। एडवांस डिवोटी जिसको कहा जाता है। भगवत पार्षद, मैच्योर्ड पर्सन। भगवत पार्षद मैच्योर्ड पर्सन ना। भगवत पार्षद तो माने नारद मुनि, माने जो नित्य नित्य मुक्त होगा ना। हाँ, जो एडवांस डिवोटी है वही होंगे प्रभु। तो ये सिरन में गौरांग प्रभु। मेरा दिया है डिग्रीधारी, माने कोई डिग्री पढ़ रहा है तो कोई पास कर गया, सर्टिफिकेट मिल गया उसको, भगवत पार्षद बोलेंगे उसको। हाँ वैसा ही वैसे ही। वो जो डिग्री जिसको मिल गया है वो उसको पार्षद बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अद्भुत चंद प्रभु, क्या फर्स्ट वाले को हम लोग नियोफाइट्स कैटेगरी में डाल सकते हैं? इट्स नॉट अ नियोफाइट माता जी। यहाँ पे जो बात हो रही है चैतन्य चरितामृत को समझने की बात, तो एक नव शिक्षित व्यक्ति, मतलब जो भक्ति में तो लगा है लेकिन स्नातक स्टेज पे नहीं पहुंचा है। जैसे हम लोग, मेरी बात करता हूँ, जैसे मैं अभी नव शिक्षित, हम सभी हैं। नहीं हम सभी नहीं, मैं नव शिक्षित, तो हम सीख रहे हैं अभी।
महाप्रभु के विषय में सीख रहे हैं, और जो स्नातक है जैसे गुरु महाराज वगैरह जो आचार्य हैं वो स्नातक, और जो एडवांस डिवोटीज हैं वो स्नातक अवस्था में। आगे। तो जिन्हें भगवान से अभिन्न बतलाया गया है, इन अवतारों की 3 विभागों में चर्चा की गई है। भगवान के सत्यावेश अवतार, मैं यहाँ से जिनकी 2 श्रेणियां, नवशिक्षित तथा स्नातक। इसके बाद भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ है जिन्हें भगवान से अभिन्न बतलाया गया है। इन अवतारों की 3 विभागों में चर्चा की गई है। भगवान के सत्यावेश अवतार, भगवान के गुणावतार तथा भगवान के अंशावतार। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रकाशों तथा दिव्य लीलाओं हेतु उनके प्रकाशों की विवेचना की गई है। इसके बाद भगवान की शक्तियों के बारे में विचार किया गया है, जिनमें से 3 प्रमुख प्राकट्यों का वर्णन हुआ है। इसके बाद भगवान की शक्तियों के बारे में विचार किया गया है, जिनमें से 3 प्रमुख प्राकट्यों का वर्णन हुआ है। यह है वैकुंठ की प्रेयसियां, द्वारका धाम की महारानियां तथा इन सब से ऊपर ब्रजधाम की सुंदरियां। सबसे अंत में साक्षात भगवान आते हैं, जो इन समस्त प्राकट्यों के उद्गम हैं। हरे कृष्णा। यस दिलीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये थोड़ा 3 तो समझाइए, आप समझाएंगे अब। सत्यावेश का एग्जाम्पल, गुणावतार का एग्जाम्पल और अंशावतार का एग्जाम्पल, तीनों का बताइए। আচ্ছা, তো এই অবতারদের আবার 3টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা আছে অবতার में। अंश अवतार, गुण अवतार में तो वो आता है तीन पुरुष अवतार ये तीन पुरुष अवतार नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आता है अवतार में, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण। सत्यावेश का बताइए। शक्तावेश में जैसे पृथु महाराज आता है, प्रजापालन अवतार। जैसे आपका शक्तावेश अवतार में व्यासदेव जी आता है, साहित्य अवतार। भगवान ने जब किसी को पर्टिकुलर, और राम जी आते हैं अवतार में आता है, अंश अवतार में आता है अंश अवतार बलराम जी। हाँ, वेरी गुड। पहला इमीडिएट प्रकाश, फर्स्ट एक्सपेंशन, अंश अवतार। यस अद्भुत चरण प्रभु, अंश अवतार। ये अभी आएगा प्रभु जी। ये पहले जो 5-6 श्लोक है ना, उसमें ही जो अंशावतार है, जिसमें कारण तो ईसाई गर्भोदशाई च पयोब्दिशाई पुरुष अवतार भी आएगा, अंश अवतार। यस, फर्स्ट एक्सपेंशन, फिर फर्स्ट चतुर्विहो, फिर सेकंड चतुर्विहो, दिया ऑल अंश अवतार ही ना, एक्सपेंशंस ओनली। ये अवतार का अवतार क्या बोलता है उसको? कला, अंशों का अंश कला। ठीक है दिलीप प्रभु। प्रभु साधवदशाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु, वो तो पुरुष अवतार में आएंगे ना प्रभु, तो फिर वो भी है। एक अवतार मल्टीपल भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या रामचंद्र जी को क्या बोलेंगे आप? रामचंद्र जी है युग अवतार, करेक्ट? ऑल्सो रामचंद्र जी को लीला अवतार बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली बोल सकते हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट नेसेसरी एक अवतार एक ही होगा, वो 2-3 हो ही सकता है, कैटेगरी में आ रहा है। युग अवतार भी हो सकता है प्रभु जी, वो तो हाँ, वो तो मैं पहले बोला, युग अवतार रामचंद्र जी, और लीला अवतार भी है। हाँ बोलिए मत। प्रभु ये जो 3 है ना, वैकुंठ, द्वारका और ब्रज, तो इसमें ये जो पहले है वैकुंठ में, तो क्या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर अपने मटेरियल वर्ल्ड में समझना हो तो मतलब सेक्रेटरीज या जो भी है वैकुंठ में है, ऑफिस है, एंड देन महर्षि है, मतलब द्वारका में जो घर में वाइफ्स होती हैं, और डांसर्स ऑफ ब्रजधाम इज जो लवर्स हैं ब्रज में, ऐसा समझ सकते हैं प्रभु? प्रभुपाद जी लिखते तो और अच्छा होता है। हाँ ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं एनालॉजी कंपैरेटिव।
प्रभुपाद जी प्रभु इसमें ये प्रभुपाद जी कॉन्सर्ट का एक लेक्चर है, उसके अंदर दिया हुआ है कि कौन कैसा दिखता है। तो वृंदावन की जो गोपियां हैं उनके विषय में अलग ही बताया जाता है, वृंदावन की गोपियां किसके समान दिखती हैं और भारत की स्त्रियां किसके समान दिखती हैं, ऐसा करके तो लेक्चर है बहुत बढ़िया। तो प्रभु इसमें लिखा है हिंदी में, जैसे वैकुंठ की प्रेयसियां, तो लेकिन ब्रजधाम की भी तो प्रेयसियां होती है ना, प्रिया होती है ना, तो यहाँ पे ऐसे क्यों दो प्रेयसियां और सुंदरियां ऐसे क्यों डाले प्रभु? क्या वो प्रिया नहीं है? ब्रजधाम की जो है सुंदरियां जो भी लिखा है प्रभुपाद ने, वो प्रेयसियां नहीं है? जैसे हम लोग तुलसी महारानी को बोलते हैं प्रेयसी, तो वो क्या प्रेयसी नहीं है ब्रजधाम की? नहीं लिखा मैंने नहीं है क्या? ये पहले इसका उत्तर दीजिए, नहीं लिखा मैंने नहीं है। हाँ होंगे। ठीक है, द्वारिका की महारानी लिखा, क्यों प्रेयसी नहीं लिखा वहां पे? तो वो लोग तो पत्नियां थी ना, वो लोग तो पत्नियां थी, और ब्रज वाली तो उनकी प्रेमिका थी। ओके ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं, और थोड़ा बाकी है। यस प्रभु, सोचा था आज एक श्लोक प्रवेश करेंगे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांश विस्तार, अंश विभव, ये सभी साक्षात भगवान अर्थात शक्तिमान परम सत्य की कोटि में आते हैं। उनके भक्त तथा नित्य पार्षद उनकी शक्तियां हैं। शक्ति तथा शक्तिमान मूलतः एक हैं, किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, अतः वे साथ ही साथ भिन्न भी हैं। इस तरह परम सत्य एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। यह दार्शनिक सत्य वेदांत सूत्रों के अनुसार है, और यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है, जिसका अर्थ है एक साथ भिन्न तथा अभिन्न होना। इस अध्याय के अंतिम अंश में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की दिव्य स्थिति का वर्णन उपर्युक्त आस्तिक तथ्यों के संदर्भ में किया गया है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू प्रभु। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, वैकुंठ में की प्रेयसियों का उदाहरण क्या हो सकता है? लक्ष्मी जी। हाँ हाँ, वो लक्ष्मी तो एक ही है ना प्रभु? नहीं नहीं, सहस्र कोटि लक्ष्मी है। ओके, ठीक है। तो हम लोग एक बार श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर पहला श्लोक आज शुरू कर लेते हैं। ठीक है, सब हाथ जोड़ करके श्रील प्रभुपाद को प्रार्थना कीजिए हृदय से कि हे चैतन्य चरितामृत एक्चुअली ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग थोड़ा क्या पूरा भी समझ सकते हैं, उनका कृपा रहे तो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सब कृपया पहला श्लोक अनम्यूट करके सब रिपीट कीजिए। ठीक है, चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम परिच्छेद का प्रथम श्लोक। वंदे गुरु निशा भक्ता ईशामीशावतारकान् तत्प्रकाशंश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकाम्। अनुवाद म्यूट कर दीजिए। আমি दीक्षा और शिक्षा भेदे, अच्छा इसका ना हम वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है। वंदे आमी वंदना करी गुरन गुरु वर्ग के, माने बहुवचन गुरन, ईश भक्तान परमेश्वर भगवानेर भक्तवृंद के, ईशम परमेश्वर भगवान के, ईश अवतारकान परमेश्वर भगवानेर अवतारगण के, तत् সেই परमेश्वर भगवानेर प्रकाशान प्रकाश समूह के,
চ এবং তৎ পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি সমূহকে কৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সংযোগম নামক। অনুবাদ: আমি দীক্ষা ও শিক্ষা ভেদে গুরুবর্গের, পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দের মানে শ্রীবাসাদি, পরমেশ্বর ভগবানের অবতারগণের মানে শ্রী অদ্বৈত আচার্য আদি, পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ সমূহ মানে শ্রী নিত্যানন্দ আদি, পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি সমূহ মানে শ্রী গদাধর আদি এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য नामक परमेश्वर भगवानेर वंदना करी। ठीक है, ये कुछ पंचतत्व मगम कृष्णम जैसा है, सबको स्तुति कर रहे हैं पंचतत्व में जो जो है। प्रभु कौन कौन थे जरा स्टार्टिंग से नाम बता दीजिए। गुरु, अच्छा, आमी दीक्षा और शिक्षा भेदे गुरु वर्गेर, ठीक है, पहले तो उसमें परमेश्वर भगवानेर भक्तवृंद, स्टार्टिंग में श्रीवास ठाकुर, फिर परमेश्वर भगवानेर अवतार गणेर जैसे अद्वैत आचार्य, महाविष्णु और शिवेर अवतार। थर्ड, परमेश्वर भगवानेर प्रकाश समूह, इमीडिएट प्रकाश एक्सपेंशन बलराम जी और नित्यानंद प्रभु माने ऑलमोस्ट सेम। परमेश्वर भगवानेर शक्ति समूह माने गदाधर पंडित, राधारानी अवतार एवं श्रीकृष्ण चैतन्य, इनफैक्ट ऑल्सो साक्षात भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य नामक परमेश्वर भगवानेर वंदना कर रहा है सबको। अगला श्लोक 2 नंबर, सब कृपया दोहराइए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदाय पुष्पवंतो चित्रौ संदो तमोनुदौ। इसका अनुवाद पढ़ लेते डायरेक्ट। गौरदेशे, म्यूट करिए प्लीज। गौरदेशे पूर्व दिगंते একই সময়ে অতি বিস্ময়কর ভাবে সূর্য ও চন্দ্রের মতো যারা উদিত হয়েছেন, সেই পরম মঙ্গল প্রদাতা এবং অজ্ঞান অন্ধকার নাশক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুকে আমি বন্দনা করি। हिंदी। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। अच्छा, तो इससे तो पता चलता है महाप्रभु को सूर्य और नित्यानंद प्रभु को चंद्रमा जैसे उनको कंपेयर किया गया ना। अगला दोनों एक साथ उदय हुए थे, एक साथ माने ऑलमोस्ट, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं, 12 साल का शायद डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट ऑन द सेम एट द सेम एरा। ओके, यही रहते हैं। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल हरि बोल। श्री चैतन्य की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा।